Hi guys, welcome back to a new video. So this time, what we are going to do is discuss the. I have taken lymph node biopsy. I have not taken malignant hematology, but I have taken lymph node biopsies with you, right? So I have received a lot of questions, and I keep receiving them about how to approach the ancillary workup in cases of leukemias and lymphomas. Normally, what we do is that when we are studying, anyone is teaching leukemias and lymphomas, what we generally do in such cases is that I'll just adjust this. Is we take the tumor, we see the histology, we see the cytological features, and then of course we tell you what panel of markers have to be put and how to analyze them. So when someone asks me that how to approach the, I had a couple of residents again asking me how to remember the CD markers or how to remember. I will deal with only that today, despite the fact that I'll be taking it up even when I am taking up the different leukemias and lymphomas. I have taken up lymphomas and histopathology right now. I'll repeat it in hematology. I will be repeating it, but I just wanted to discuss with you today only and only the investigation. And I'll tell you how I remember the panels. I don't have mnemonics for it. You would go to sites. There are definite full lecture sites, which I'm not going to name them, which of course they are, everyone knows about them, which have lectures, etc., mnemonics and everything, which you are more than welcome to attend and learn. What I'm going to give you instead is a concept of how to approach, and in while I take this 15-20 minutes tutorial, I am going to try that you retain some part of the particular markers that you people are interested in, some part of it even. And I have this personal thing that if you remember even 5% of what you are hearing, then the deal is done. It is an achieved target. The excuse me, the person who's teaching is very happy, and you as a student should be very happy, because you cannot remember the entire 15-20 minutes lecture in just one go. So excuse me, what I'm going to be doing is, okay, and this is my book, which has a lot of whatever I'm going to teach you, and that too in simplified form, and that too it highlights the important things. I mean, I'm not it won't beat around the bush and give you a lot of in-depth analysis, which is available in every, there's so many good books for that. What I'll teach you, it has all those things in point format, so that you can retain it. Okay, so that you have a one-stop solution ki khola dekha what is important, and then you just go ahead. And this is available on the Ahuja website, Ahuja book website on Google. It is just 188 rupees right now. So I would love for all of you who are hearing me to go and buy this book and then give me your feedback. And soon we'll be out with a benign hematology uh, section also. This one is mostly malignant hematology, and it's not only hematopathology, it is some clinical hematology also. And this book has a lot of case scenarios, then troubleshoots and tables and flowcharts. You can write an answer from this book. So look, everyone knows this table. Everyone knows that there are panel of CD markers. So what I am going to instead tell you is, there are some very common CD markers that you have to remember. ठीक है, start with that. Today I'm just telling you the approach to remember them, because सबको पता है कि CLL SLL है तो उसमें कौन सा देखेंगे, वो बुक्स में दिया है. एंड इन टेबल, ये टेबल्स भी मैंने नेट से ही लिए, मैंने कोई खुद से नहीं बनाई, तो ये भी आप, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस. And there are better tables also. So what instead I'm going to tell you is the approach to of doing things. So let us take in, तो पहले तो ये याद रखो कि supposing we are dealing with ALL, okay, or a lymphoma. तो there's एक panel है, there's a certain panel of markers that you have to first know कि ये वाले ही देखने हैं.
एंड देन हम पहले ये देखते हैं कि कौन से देखने हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड सी कौन सा किस में होता है. So there, see, without even looking at the table, let us first think. The common markers जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं for the B cell lineage is 19, 20, 21, 22. The common for T cell lineage is 2, 5, 7, 4, 8. Then both in B and T cell lineage आते हैं receptor markers. या तो T cell में आते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा रिसेप्टर्स. ये जितने मार्कर्स है ना, ये सब उनकी जो ग्रोथ मॉर्फोलॉजी का जो चार्ट्स बना रहता है ना, कि प्रो बना, प्री बना, मच्योर बना, ब्लास्ट है, ये उस पे जो मार्कर एक्सप्रेस हो रहे हैं, बस उसी को दिखाता है. आई मीन जो जिस स्टेज का लिम्फोमा या ल्यूकीमिया है, उसी स्टेज का मार्कर उसमें मिलेगा. सिंपल फंडा है, इसमें इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. If it is at a pro lymphoblastic, whatever markers are there at pro stage, वो ही तुमको lymphoblast में दिखेंगे. और दूसरा फंडा ये है कि जब क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोमा या क्रॉनिक लीनियज से निकलना नहीं है, तो क्रॉनिसिटी के मार्कर भी नहीं मिलेंगे, मैच्योरिटी मार्कर नहीं मिलेंगे. और मैच्योरिटी मार्कर अमूमन हम 21, 22 इनको कहते हैं. ठीक है. बीच वाली जो एज होती है, जो टीन एज ऑफ ये सेल कहते हैं, जो प्रो प्री वाला आता है, प्री वाला जो लीनियज होता है, उसमें 19-20 रहता है. कुछ केसेस में इमैच्योरिटी मार्कर रहता है, कुछ केसेस में नहीं रहता है. ये मोटा मोटा बता रही हूँ मैं. और जो बिल्कुल ही इमैच्योर होते हैं ना, उनमें टीडीटी, CD34, HLA-DR बस ये दिखता है, उसमें कुछ और नहीं दिखता है. अब मार्कर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैच्योरिटी इमैच्योरिटी, एक होता है लीनियज मार्कर. तो जब मैं कहती हूँ व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड इमैच्योर, आई डोंट मीन कि वो लीनियज डिफाइंड नहीं है. मतलब कि हिपैटोब्लास्टोमा जब बनता है, आई एम गिविंग यू एग्जांपल फ्रॉम हिस्टोपैथ. हिपैटोब्लास्टोमा जब बनता है, तो वो जो सेल है, दैट इज अ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, उसको ये पता है कि उसको लिवर ही बनना है, बट वो लिवर का इमैच्योर ट्यूमर है. सेम फंडा लगाओ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल पे. उसको पता है कि उसको बी लीनियज का ही बनना है, इसलिए लीनियज मार्कर हो सकता है उसमें, बट वो बी लीनियज का बच्चा है अभी, वो बी लीनियज का अडल्ट नहीं बना है. इसीलिए इमैच्योरिटी मार्कर ज्यादा है एज कम्पेयर. तो इमैच्योरिटी मार्कर्स आपके होते हैं टीडीटी, HLA-DR, CD34. और मैच्योरिटी मार्कर्स आते हैं 19, 20, 21, ये सब. तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो. ठीक है. ये चीज बहुत अच्छे से दी है वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ सर्जरी में, WHO में. इट इज गिवन इन बोथ द बुक्स. ये टेबल बना है, मैं अभी आगे दिखाऊंगी, इसको देख लो, इसको रट लो. अगर ये याद हो गया तो बेसिक मार्कर्स याद हो गए. और उसी के नीचे बना है कि कौन सा लिम्फोमा कहाँ से निकलता है. उसके बाद से याद रख, इसका डायग्राम बनाओ एंड जस्ट स्टिक इट ऑन योर वॉल, एंड दैट इज हाउ यू रिटेन इट. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ. हमने ये याद तो, और टी सेल मार्कर मैंने बता दी, और माइलॉइड लीनियज मार्कर्स अपने 13, 33 MPO. अच्छा, अब क्योंकि हम IHC ऑफ फ्लो तक पहुंच चुके हैं, सो नाउ दे आर लाइक, जैसे हम CD3 बोलते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि वो सरफेस पे आ गया है, कि साइटोप्लाज्म में है, कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे. याद रखना, जितना ही वो कम सरफेस पे एक्सप्रेस हो, मतलब कम मेम्ब्रेनस एक्सप्रेशन हो रही, उतना ही इमैच्योर होता है वो. मतलब लास्ट स्टेज ऑफ एनी रिसेप्टर टू कम एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ इज ऑन द सरफेस. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि साइटोप्लाज्मिक CD3 इज मोर कॉमन इन TLL, जो इमेच्योर टाइप के होते हैं, बिकॉज अभी वो मच्योर नहीं हो पाया है कि सरफेस पे एक्सप्रेस हो सके. ठीक है. दिस इज वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट. सो आई एम गोइंग टू टेक दैट अप मोर इन डिटेल. अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सपोजिंग CLL है. तो याद रख लो कि ये बी लीनिएज का है, राइट. तो बी लीनिएज में तुम्हारे क्या आते हैं, 19-20 आएंगे ही आएंगे, 21-22 छोड़ दो, आते ही आते हैं, बट 19-20 तो आने. तो दो मार्कर याद हो गए. 19-20 वो हर ऑलमोस्ट हर बी लीनियज में. तो यहाँ देखो, मेंटल में, फॉलिकुलर में, मार्जिनल में, हेरी में, सब में है ना पॉजिटिव. अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग पे भी मत जाओ, जस्ट रिटेन, ट्राई टू रिटेन व्हाट इज पॉजिटिव राइट नाउ. देन कम्स, ठीक है, दिस इज, अब इतना कम होता है, हो गया. नाउ व्हाट आर दी स्पेसिफिक मार्कर्स. So once you know that B cell lineage has 19 and 20, now let's come to, now you only have to learn by rote are the specific markers. So for CLL, SLL, 5 and 23 are very specific. ठीक है. Now you see 5 apart, but I said are very specific, मतलब इसमें होते, but तुम्हें मैंटल में भी दिख रहे हैं. मैंटल में 5 दिख रहा है, 23 नहीं है. जहां पे भी मार्कर नेगेटिव स्लैश पॉजिटिव हो जाता है, डोंट रिमेंबर इट.
बिकॉज ये डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर यू टू राइट द आंसर. इवन इफ यू डोंट राइट CD23 in follicular lymphoma, no one will penalize you because उसमें CD10 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. So this is how I remember that. First remember the common marker, then make a chart which is the specific marker for specific lymphoma and just read it every day once in the morning for 5 minutes and do that for 1 month. It is ऐसा हो नहीं सकता that this doesn't stick to your mind. So CLL 1920 सब में है, 20 weak होता है. Apart from that you see their CD5 positivity and 23 positivity. तो CLL का specific marker क्या है? 523. I'm leaving out all these positive negative वाले, I'm just leaving them out. Mantle, अब एक ऐसा लिम्फोमा है जिसमें तुम्हें लग रहा है ये ब्लास्ट भी हो सकता है, ये मैच्योर लिम्फोसाइट भी हो सकता है, ये प्रो लिम्फोसाइट भी हो, समझ में नहीं आ रहा है. हम मॉर्फोलॉजी पे जाके देखते हैं, इज इट मोर ब्लास्टॉइड और इज इट मोर इमैच्योर छोटे लिम्फोसाइट्स, जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स की तरह. सपोजिंग वी आर लाइक probably this could be any one of the two. Let us see. हमको नहीं समझ में आ रहा है. I'm very immature, I am very amateur, I don't know. What I'll do is I'll put markers. So मैं 1920 तो लगाऊंगी, उसके साथ क्या लगाऊंगी, आई एम गोना पुट, जब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, एटलीस्ट मॉर्फोलॉजिकली मैं इतना पहुंच गई कि इन दोनों में से एक है, देन तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है, आई एम गोना पुट 523. एंड नाउ व्हाट एल्स कैन यू पुट टू एनहांस द डायग्नोसिस ऑफ मेंटल, की और ज्यादा मेंटल क्लियर हो जाए, यू कैन पुट FMC7 और CD79B. अगर कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में है तो जरूरी नहीं है कि ये लगाओ. अब पूछो, आस्क मी व्हाई, बिकॉज 23 इसमें नहीं आता है, तो यू आर लिमिटेड बाय मनी, यू कांट यूज ऑल द मार्कर्स, देन जस्ट पुट दिस एंटायर पैनल 5 to 23 एंड सी कि 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इफ इट इज नेगेटिव इट इज मेंटल, इफ इट इज पॉजिटिव इट इज CLL. So I'm just trying to tell you how we approach a diagnosis in the practical scenario. In the theoretical scenario, just remember the three common markers. वो हो गए, जैसे remember your vivas and medicine, nausea और pharma. nausea vomiting हर दवाई का side effect होता था. Then एक एक specific side effect जो होता है उसको याद करना पड़ता है. I make a table and then I remember it. ठीक है. तो that is how we used to do. हम हर दवाई में nausea vomiting बोलते थे और फिर हम ये याद कर लेते थे कि अच्छा फलाना दवाई का और क्या एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है वो याद कर ले, इनफ इन अ वाइवा. सेम चीज है, 1920 कॉमन इन ऑल द बी सेल, तो वो तो लिखना ही लिखना है. साथ में जस्ट यू हैव टू मेक अ टेबल, 5 लिम्फोमास है, हर का एक एक याद कर लो कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट. दैट इज बेस्ट वे. मेक अ टेबल, स्टिक इट नियर योर बेड साइड और वेरेवर यू स्टडी, एंड मॉर्निंग में एक बार 5 मिनट उसको टेबल को देख लो. दैट्स इट. कमिंग टू फॉलिकुलर, हियर इंपॉर्टेंस ऑफ CD10 इज मोर. देखो यहाँ CD10 कहीं पे भी नहीं है. मार्जिनल जोन एक बहुत ही ब्लैंड इन द सेंस, उसमें ना बस कॉमन बी होता है, उसको कुछ स्पेसिफिक नहीं होता मार्जिनल जोन का. तो 1920. हेरी सेल ल्यूकीमिया 103C नॉट प्रेजेंट इन एनी. 11C मार्जिनल में भी मिल सकता है बट 103 सिर्फ हेरी में मिलता है. सो दिस इज हाउ यू अप्रोच. सी, mantle cell also has a cyclin D1, very very specific. Burkitt's KI67 इसमें नहीं mentioned है but it is very important, 100% होता है. And then 1920-10 ALCL CD30 and ALK, and ALCL ALK नेगेटिव भी होता है. तो अब क्या करें? दे आर मॉलिक्यूलर मेथड्स. देन IHC के बियॉन्ड जाते हैं मॉलिक्यूलर ट्रांसलोकेशंस देखने के लिए. एंड दिस डिफरेंशिएट्स फ्रॉम हॉचकिंस बिकॉज हॉचकिंस में 15 आता है, 20 आता है. एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा T सेल लीनिएज का है. तो ये सब चीजें ना याद तब होंगी जब आप पहले तो चार्ट बना के याद करो कि B सेल लीनिएज मार्कर्स क्या होते हैं, T सेल लीनिएज क्या होता है. एंड देन स्लोली मल्टीपल रिविजन्स बार बार देख के डिस्कस करके यू कैन रिटेन कि टी कौन से बी कौन से, वो हो जाएगा. इट्स नॉट सच अ बिग डील. इट इज माइट साउंड डिफिकल्ट राइट नाउ बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. ठीक है. सी अगेन, स्टेम सेल से इनिशियल स्टेज में जाता है, देन दिस एंड यू नो दिस पिक्चर आई डोंट लाइक टू मच बिकॉज ये मैंने नेट से लिए, रॉबिन्स की है. बट एंड ये ना मॉलिक्यूलर ज्यादा है. लाइक दे आर गोइंग टू टेल यू कि CD4 मतलब 4 एक्सप्रेस हो चुका है, ये टी सेल लीनिएज है. तो मच्योर टी सेल से क्या क्या बन रहा है, ENK टी सेल, इसमें NK सेल से ये बन रहा है. तो जैसे जस्ट एन एग्जांपल, CD4 टी सेल से ATLL, AITL, PTCL, NOS, ALK, ALCL एंड ALK नेगेटिव ALCL, ये मच्योर टी सेल से बन रहा है जो कि 4 लीनिएज का है. 8 lineage में PTCL NOS is more common.
एनकेटी सेल से एनकेटी सेल लिम्फोमास, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. गो अहेड विद द डायग्राम्स व्हिच आर देयर इन WHO. इट इज देयर इन माय बुक आल्सो, द डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ यू डोंट वांट टू रीड बिग बिग बुक्स, यू कैन जस्ट परचेज दैट बुक. वो डायग्राम उसमें भी है, द डायग्राम उसमें जो लीनिएज वाला दिया हुआ है ना, जस्ट गो अहेड विद दैट and read it, and just try and retain it. उसको बना लो and then stick it wherever you are, uh, uh, wherever you study, wherever you and just read it every time. ठीक है. मार्कर्स रटे नहीं जा सकते हैं. दे आर either you discuss cases with each other regarding a marker and उससे वो रिटेन होते हैं, या फिर वो रिटेन होते हैं when you are going through it every time. It is impossible to retain specific markers. मोटा मोटा तो याद हो जाता है. 25748 is for T, and there are some specific others who again specific markers, and 192021 is for B, 1333 is for माइलॉइड. वो तो याद हो जाता है, वो अभी भी याद हो गया होगा, अभी तक याद हो जाना चाहिए था. ठीक है. And then again, see, there is an entire list of CD markers telling you, see 30 positivity दोनों में है, हॉचकिंस में भी है, ALCL में भी है, बट ये 15 नेगेटिव होते हैं. देन 33 34 स्टेम सेल मार्कर्स हैं, 41 61 मैक्स के मार्कर्स हैं. ये टेबल बना लो और लगा लो. एंड देयर इज अ बुक बाय डॉक्टर नताशा रेकमैन ऑल्सो, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है. ठीक है. उसमें पूरा टैबुलेटेड है. इवन इन माय बुक इट इज टैबुलेटेड. डॉक्टर नताशा रेकमैन की बुक में सॉलिड ट्यूमर्स का भी टैबुलेटेड है. सो यू कैन, she is mostly a lung pathologist. I got a chance to work under her. She's from Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York. I got a chance to observe under her for 2 months in lung pathology. Brilliant doctor. You can buy her book. Mostly she has everything for solid tumors. My book has everything for hematology. ओके. सो अगेन देखो, नाउ सपोजिंग मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका टेबल डिफरेंट भी हो सकता है. सपोजिंग आई वांट टू रीड अ बी सेल लीनिएज. मैंने क्या कहा, 19 20 21, तो यहाँ इन्होंने 19 ले लिया. दिस मोस्ट स्पेसिफिक बी सेल लीनिएज मार्कर होता है. नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे, हम 5 लगा के देख लेते हैं. अगर 5 पॉजिटिव है तो क्या क्या हो सकता है, CLL और मेंटल. तो अब देख लो, उन्होंने इतने मार्कर लगा लिए, सिंपल सा था, 23 लगा लो. 23 पॉजिटिव है CLL, नेगेटिव है मेंटल. 5 नेगेटिव आ रहा है तो नेक्स्ट बेस्ट होता है 10 लगा लो. 10 पॉजिटिव है फॉलिकुलर, नेगेटिव है तो हेरी हो सकता है. अगेन मार्जिनल. मार्जिनल इज मोस्ट ट्रैश बॉक्स डायग्नोसिस, इसलिए कि जब सब नेगेटिव आ रहा होता है, सिर्फ कॉमन बी सेल पॉजिटिव आता है, तब हम कहते हैं मार्जिनल है. तो CD25 103 पॉजिटिव है, हेरी सेल. ये अप्रोच होती है. दिस इज हाउ यू मेक एल्गोरिदम एंड देन अप्रोच. ये एक हैंड्स एल्गोरिदम है. ये सारे हैंड्स नहीं है, वन ऑफ देम इज ओनली हैंड्स. हैंड्स एल्गोरिदम इज गिवन फॉर DLBCL. इसको पढ़ लेना. अगेन द सेम थिंग, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमास या ट्रिपल नेगेटिव लिम्फोमास या हाई ग्रेड बी सेल लिम्फोमास का एक सेपरेट चैप्टर WHO में आ गया है. उसमें 3 है, बकेट लाइक बकेट, DLBCL एंड इंटरमीडिएट हाई ग्रेड लिम्फोमास हैं, जिसमें कि मार्कर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे मोस्टली दे आर नेगेटिव एंड देन यू गो फॉर मॉलिक्यूलर. सो बेसिकली हैंड्स एल्गोरिदम ये बताता है जो DLBCL है वो जर्मिनल सेंटर से निकला है कि नॉन जर्मिनल सेंटर है, एंड उस पे प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है कि फलाने के अच्छी है, इसकी बुरी है. ठीक है. सो CD10 इज सपोजिंग मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव. हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में ग्रेटर देन 30%, हमने CD10 लगाई किसी लिम्फ नोड की बायोप्सी पे, लग रहा है DLBCL और पॉजिटिव है, तो वो जर्मिनल सेंटर है. CD10 नेगेटिव है तो उसका ओरिजिन अब जर्मिनल सेंटर नहीं है. Then we go for BCL6. BCL6 greater than 30% positive, go for MUM1. MUM1 greater than 30% positive, non-germinal center. BCL6 negative, non-germinal center. MUM1 negative, germinal center. तो जब अब मोटा मोटा इसको याद करने का तरीका देखो, हमने मार्कर कितने पढ़े इसमें, एक CD10 है, एक BCL6 है, एक MUM1 है. ठीक है. 3 मार्कर हो गए. और ये देखते हैं जर्मिनल सेंटर है कि नहीं. अगर 10 पॉजिटिव है तो सीधा सीधा ये जर्मिनल सेंटर से निकल रहा है. अब इसका आंसर उस चार्ट में जो मैं कह रही हूँ मेरी बुक में, उसमें तुमको दिखाएगा कि कौन से सेल ऐसे होते हैं जो नॉर्मली जर्मिनल सेंटर में होते हैं, कौन सा स्टेज होता है बी का जो कि नॉर्मली जर्मिनल सेंटर में होता है, और उसमें नॉर्मली 10 पॉजिटिव आता है. एंड दैट इज वाई ये लिम्फोमा उसी सेल से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, इसलिए इनको इसमें 10 आएगा पॉजिटिव, तो हम उनको लेबल कर देते हैं जर्मिनल सेंटर. दिस इज मोस्टली फॉर प्रोग्नोस्टिक पर्पसेस. सो इफ 10 स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव, इट इज जर्मिनल. अब होगा 10 नेगेटिव है तो नॉन जर्मिनल नहीं.
ये ट्यूमर है, दिस इज नॉट नॉर्मल। सो वी लुक फॉर फर्दर मार्कर्स जो हमें पॉइंट करेंगे कि जर्मिनल है कि नॉन जर्मिनल। वी गो फॉर नेक्स्ट मार्कर इज BCL6। अगर 10 पॉजिटिव नहीं है, BCL6 पॉजिटिव है, तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और देखेंगे MUM1 पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि कई बार BCL6 पॉजिटिव हो सकता है नॉन जर्मिनल सेंटर ट्यूमर में। अब अगर MUM1 नेगेटिव आता है और BCL6 10 तो नेगेटिव है ही, और BCL6 पॉजिटिव आता है, तब ये भी जर्मिनल सेंटर है। सिंगल सिंगल मार्कर जर्मिनल सेंटर में या तो 10 है या BCL6 है। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं BCL6 और MUM1 इन अ केस जहां 10 नेगेटिव है, तो ये नॉन जर्मिनल सेंटर है। अगर 10 नेगेटिव और BCL6 दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, तो भी ये नॉन जर्मिनल। ठीक है, तो दिस इज, आप अपना भी एक अप्रोच बना सकते हो। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इसी तरीके से अप्रोच करना है। ये मैं ऐसे समझी हूँ, मतलब 3 मार्कर है, या तो सीधे 10 पॉजिटिव आ जाए या सीधे BCL6 पॉजिटिव आ जाए, तो जर्मिनल सेंटर है। 10 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो हम एक स्टेप आगे जाके देखते हैं MUM1 क्या है। MUM1 भी पॉजिटिव है तो नॉन जर्मिनल सेंटर है। 10 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है, तो नॉन जर्मिनल सेंटर है। नॉन जर्मिनल में 2 बड़े बड़े पॉजिटिव आते हैं या सब नेगेटिव आते हैं। ठीक है, अब ये रखने का तरीका है, सबका डिफर कर सकता है। Again, I'm showing you a panel of markers जहां पे they have discussed similar looking B cell lymphomas। ठीक है, इनकी etiology EBV viral etiology होती है, इनकी look similar होती है, and then there's a panel। इस पे तब आओ when you have mastered the basic panel, then go for specific panels, otherwise you'll get confused। थोड़ा सा I have taken this from a paper, I'll tell you the paper in the next। वो मैंने लिंक डाला था, somehow वो एक आइकॉन की तरह आ रहा है फ्लो साइटोमेट्री पे। पहले तो फ्लो साइटोमेट्री से स्कैटर प्लॉट समझ लो। एक एक्सिस है ये x और एक है y। y जो होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करती है कि जो सेल दैट इज अ साइड स्कैटर, कि सपोजिंग आई जस्ट टेक अ पेन, सपोजिंग ये एक लेजर बीम है और इसके थ्रू आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर, ये एक सेल पास हो रहा है। ठीक है, और इसमें ऐसे 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 लोब्स है। नाउ व्हेन दिस सेल गोज थ्रू दिस सिंगल वेवलेंथ लेजर, तो इस सेल का दो स्कैटर, वो 2 डायरेक्शन में इस सिंगल वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। एक तो इसकी साइज की वजह से, एक इसका फॉरवर्ड स्कैटर जाएगा। ठीक है, एंड द सेकेंड ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी विद इन दिस सेल, व्हेन द लेजर गोज लाइक दिस, ठीक है, इट विल गो लाइक, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ऑफ डायरेक्शन में जाएगा। this inside, this complexity inside will break up the light। and अगर ये and supposing this cell, I just change color, supposing ये बिल्कुल plain cell हो, अंदर इसके कोई complexity नहीं है, कुछ नहीं है अंदर, I'll just rub it out। ठीक है, एकदम plain cell है ये। now when this plain cell passes through this single laser, इसका it will allow this laser to go at a 90 degree smoothly, and ऐसा अंदर कुछ है नहीं जो इसको इधर उधर बहुत ज्यादा स्कैटर करे, तो इसका फॉरवर्ड स्कैटर ज्यादा होगा। स्कैटरिंग ऑफ लेजर मींस एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट के थ्रू जब एक कोई भी सेल पास करोगे आप, ठीक है, तो कितना वो डिस्टर्ब करेगी उसके वेवलेंथ को। अगर तो वो बड़े साइज की है जिसमें अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कुछ न्यूक्लियोलाई नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रैन्यूल नहीं, बस स्मूथ है, तो उसका फॉरवर्ड स्कैटर ज्यादा रहता है, मोस्टली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्केल। साइड स्कैटर होता है अंदर कितना कॉम्प्लेक्स है, बड़े मोटे ग्रैन्यूल्स हैं वो, तो वो उतना ज्यादा बिखरता है वो लाइट, एंड दैट इज नोन एज साइड स्कैटर। So this is side scatter in y-axis, and this is x-axis by forward scatter. With this, now you have to be very careful in analyzing the scatters when we are analyzing। ये जो this is a sample, ये एक sample चलाया गया जो कि acute leukemia का था। ठीक है, so here what you get, अब आप ना बस स्कैटर से समझने की कोशिश करो। पहले let me take this graph। जितना ज्यादा सेल कॉम्प्लेक्स होगा उसका साइड स्कैटर उतना ज्यादा होगा, तो मतलब ये साइड स्कैटर है। ठीक है, तो वो और ऊपर की तरफ आएगा, और जितना ज्यादा वो बड़ा होगा उसका फॉरवर्ड स्कैटर ज्यादा होगा, मतलब वो इस तरफ ज्यादा आएगा। तो अगर कोई सेल इस एरिया में है तो मतलब उसका साइड स्कैटर भी ज्यादा है, फॉरवर्ड स्कैटर। अगर कोई सेल इस एरिया में है मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है,
क्योंकि वो उसका साइड स्कैटर देखो यहाँ पे कहीं आ रहा है, लेकिन उसका फॉरवर्ड स्कैटर कम है, मतलब साइज छोटा है, राइट। अगर तो कोई सेल यहाँ पे है तो उसका दोनों ही नहीं है, ना ही कॉम्प्लेक्सिटी है ना ही साइज है। अगर तो कोई सेल यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड स्कैटर तो ज्यादा है लेकिन साइड स्कैटर ये देखो कम है, मतलब सेल कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन साइज में बड़ा है। तो ये तो मोटा मोटा स्कैटर प्लॉट के एरियाज हो गए, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल है ये ग्राफ, इन्होंने सैंपल रन किया, तो ये जो हर ये ना, आई हैव टेकन इंटरप्रिटेशन ऑफ सीबीसीज बिफोर, उसमें जाके देखना, ये जो एक पैरेलल, ये जो आपकी ये वाली लाइन होती है ना फॉरवर्ड स्कैटर वाली, लो साइड स्कैटर से एक ये पैरेलल पैरेलल जो ये सब हमेशा चलता है ना, ये हमेशा डेब्री होती है, या तो ये एनआरबीसी होती है या ये आरबीसी की डेब्री होती है। ये डब्ल्यूबीसी के ग्राफ में मिलता है, होता है ये आरबीसी का है, मिलता है डब्ल्यूबीसी के ग्राफ में, बिकॉज फ्रैगमेंटेड होता है हीमोलिटिक डेब्री, या एनआरबीसी होती है आरबीसी है लेकिन न्यूक्लियस के साथ। तो डब्ल्यूबीसी का जो लाइज होता है वो इनको ठीक जब तोड़ता भी है तो इनका न्यूक्लियस रह जाता है, या साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट मशीन रीड नहीं कर पाती है ठीक से। तो हमेशा जो एकदम लो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये चल रही होती है ना, ये डेब्री होती है। अब फॉरवर्ड स्कैटर से साइड स्कैटर से समझो, जो ये ग्रैनुलोसिटिक लीनिएज के सेल्स होते हैं ना, इनमें खूब कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो इनका साइड स्कैटर ज्यादा है, और इनमें साइजेस भी बड़े बड़े होते हैं, तो ये कहीं इधर लाई करते हैं ये, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट एंड ऑल दैट होते हैं उनका साइड स्कैटर ज्यादा नहीं होता, लिम्फोसाइट में छोटू सा प्यारा सा न्यूक्लियस होता है, कुछ नहीं, तो वो कहीं इधर लाई करते हैं इस रेंज में। ब्लास्ट जो लिम्फो के होते हैं वो कहीं इधर लाई करते हैं। नॉर्मली जो ब्लास्ट का ग्राफ आता है ना, तो वो एक सॉलिड राइस के साथ आता है। जब ब्लास्ट होंगे तो वो साइज तो बड़े हैं लेकिन स्कैटर कम है, तो एक्स एक्सिस पे वो लेफ्ट हैंड पे रहेंगे, जीरो की तरफ, मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल गई, उनका साइज, जैसे ये ब्लास्ट है ठीक है, तो वो अगर हम CD45 वर्सेस साइड स्कैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, हम 45 लिम्फोब्लास्ट के लिए निकालते हैं, मतलब लिम्फोइड लीनेज के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जब हम 45 को साइड स्कैटर से कंपेयर कर रहे हैं तो कोई ऐसा पॉपुलेशन है जो लोड साइड स्कैटर और बड़े साइज के रेंज में फॉल कर रहा है। देखो, ये देखो यहाँ पे, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से इज 45 लिम्फोब्लास्ट को, मैं भी एक एग्जांपल एएलएल कर रही हूँ, 45 लिम्फोब्लास्ट को देखता है। अब हमको देखना है ब्लास्ट है कि नहीं। ब्लास्ट सेल तो बड़ा है साइज में, मतलब फॉरवर्ड स्कैटर ज्यादा होगा, लेकिन अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो साइड स्कैटर कम है उसका। इसीलिए अब हम एक ऐसा सेल ढूंढते हैं 45 से गेट करके, 45 के चैनल में फ्लो में चला के, कोई ऐसा सेल हम देखते हैं जिसमें साइज तो बड़ी है लेकिन साइड स्कैटर कम है, और साइज रूटीन लिम्फोसाइट से ज्यादा बड़ी है। ये हमें आता है, ये फ्लो वाले को पता है कि रूटीन लिम्फो कहाँ फॉल कर रहा है। देखो ये पॉपुलेशन है ब्लास्ट की, इसकी फॉरवर्ड स्कैटर तो यहाँ पे फॉल कर रही है ग्राफ में, लेकिन साइड स्कैटर 256 से कम है, ठीक है। इसी तरीके से हम माइलॉइड देखते हैं, उसका साइड स्कैटर ज्यादा होगा तो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव देखने का तरीका होता है, ये चेम्बर होता है पॉजिटिव, दोनों मार्कर, ये चेम्बर होता है पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये होता है पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स, ये होता है बोथ नेगेटिव, ठीक है। ये लॉजिकली भी है कि भाई साइड स्कैटर की वैल्यू भी हाई है और फॉरवर्ड स्कैटर की भी। यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटर ज्यादा है, देखो साइड स्कैटर कितना कम है, यहाँ पे साइड स्कैटर ज्यादा होगा फॉरवर्ड कम, और यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। और फ्लो में ना हम नंबर ऑफ सेल नहीं करते, नंबर ऑफ इवेंट्स करते हैं। इवेंट का मतलब है एक सेल जब क्रॉस कर रहा है तो वो कितने रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सेम ओवर हियर, इसका ये ना पेपर आई टेल यू पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसीज पे, देन एमआरडी, टीबी, एएमएल, एमडीएस सबका अलग अलग होता है एमआरडी, एंड उसको पढ़ने के लिए कैरियोटाइप फ्लो, कैरियोटाइपिंग फिश, एनजीएस, आरटीपीआर से बहुत सारे तरीके हैं। ये नॉर्मल तरीके अदर ल्यूकीमियास लिम्फोमास के लिए भी हैं। एमआरडी का मतलब होता है मिनिमल रेजिडुअल डिजीज, मतलब कितनी बीमारी बाकी है बॉडी में, ये हम हायर टेक्निक से कितने मिनिमल परसेंटेज ऑफ ब्लास्ट बाकी है देखते हैं। हर ल्यूकीमिया लिम्फोमा का अलग कट ऑफ होता है, एंड वो कट ऑफ हम नॉर्मली फ्लो से पढ़ते हैं सेपरेट पैनल्स यूज करके। देन दिस इज फॉर एमपाल एंड बीपाल,
ठीक है, मिक्स फिनोटिपिक एंड बाइलिनियज लिम्फोमास में कौन से मार्कर स्पेसिफिक होते हैं, कैसे दिखने चाहिए, ये टेबल स्लोली यू कैन डू इट, फर्स्ट डू द बेसिक मार्कर्स।